Hello friends, my name is Lalita Berwa. Today we will study the poem Earthen Poets written by O.N.V. Kurup. Let's have a little introduction about the poet. O.N.V. Kurup is a prominent Malayalam poet, prose writer and lyricist. His full name Ottapal Kallam Neelakandu Velu Kurup. He was born on May 27, 1931 in Kollam district. His first published poem, Munottu Forward, in 1946, penned in the backdrop of his patriotic feelings. The poetic aspect of the epic Adhyatam Ramayana and its style have had a major influence and impact later in his career as a poet. Agni Bangal, the poetic work, was awarded the Kerala Sahitya Academy Award in 1971. He was awarded Padam Shri in 1998, Gyanpith in 2007, and Padam Vibhushan in 2011. Some of his poetic works are The Desert, Blue Eyes, Peacock Feather, One Drop of Light. His collection of 1500 songs was published under the title Song of ONV. He died on 2016. He was one of the leading lyricists in Malayalam film industry. He has penned about 1000 songs in about 232 films and numerous songs for plays and albums. He has got many awards in film for his lyrics, as Filmfare Award, National Film Award, a Senate Film Award, and many Kerala State Film Award. This poem was translated from Malayalam into English by K. Sridharan Nair. Let's have a little introduction of the poem. Kurup employs the symbol of earthen pots to talk about individuals who are seen as merely a mass and as lacking any significant value in themselves. The poet speaks about the ties that bind these pots together, their attachment to each other, and their sense of loss when one from their midst is taken away. He also examines the notion of their worthlessness and speculates on the possibility of unknown destinies, which might just possibly include something momentous. Though the metaphor he uses is systematically and consistently that of the mud pots, he imparts greater significance to this slight topic by equating the mud pots to human lives and thus enlarging and broadening its scope. Though never stated outright, underlying the entire poem is the concept of man as essentially a thing of earth. The earthen pots. Let's see the text of the poem now. How long we remained here thus, two empty earthen pots, gazing at each other, close by in the potter's yard. So close that softly brushing against each other, and not quite sure whether touching or not. A gazing at each other is inexhaustible jest. We two earthen pots. Here the speaker is a pot who is asking another pot that how long have we remained here thus? Two empty earthen pots. These pots are empty and for many long time they have been placed there and the pots are gazing at each other. They are looking at each other close by in potter's yard. And where they are placed? They are placed in a potter's yard. So close that softly brushing against each other. The pots are put together that they are touching each other and not quite sure whether touching or not. The poet said that it is also not sure that we are touching each other or not. Gazing at each other in
inexhaustible chest because they are inhuman, so they cannot touch or do something, but they can just gaze at each other. We to earthen pots. जो अर्दन पॉट्स हैं वो बहुत लंबे समय से एक पोटर्स या कुम्हार जो भी होता है उसके यार्ड में बहुत लंबे समय से रखे हुए हैं। और वो कैसे हैं? एम्प्टी पॉट्स हैं, खाली हैं। एंड दे आर गेजिंग एट ईच अदर क्लोज बाय इन पोटर्स यार्ड। और वो खाली हैं और बहुत लंबे समय से एक यार्ड में रखे हुए एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो इतने पास हैं, सो क्लोज दैट सॉफ्टली ब्रूसिंग अगेंस्ट ईच अदर। वो इतने पास पास रखे हुए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड नॉट क्वाइट श्योर वेदर टचिंग और नॉट। और ये भी एक अनसर्टेनिटी है कि वो ये भी नहीं जान पा रहे कि वो एक दूसरे को प्रॉपरली टच कर भी रहे हैं या नहीं। गेजिंग एट ईच अदर इन इनएग्जॉस्टिबल चेस्ट। और बहुत लंबे समय से वो एक दूसरे को जस्ट गेज कर रहे हैं, देख पा रहे हैं बिना रुके बिना थके। वी टू अर्दन पॉट्स। वो अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि हम दोनों अर्दन पॉट्स बहुत लंबे समय से एक दूसरे को गेज कर रहे हैं, देखते रहते हैं। और इस पोएम में या इस पैराग्राफ में जो पोइट है वो कहना चाहता है कि हम जो मनुष्य हैं, ये पोर्ट एक तरह से मेटाफोर के रूप में यूज़ किया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए, कि इस दुनिया में जो ये जो पोर्ट है, जो पोटर्स यार्ड है, वो एक अर्थ है। और हम जो पोटर है वो कौन है? गॉड है। गॉड के यार्ड में हम बहुत लंबे समय से इस यार्ड में बैठे हुए हैं, एक दूसरे को बस देखते रहते हैं या एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते रहते हैं। और हम कैसे हैं? बिल्कुल खाली। खाली का मतलब हमारे अंदर भावनाएं हैं, लेकिन हम उन भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, या करना भी चाहते हैं तो किन्हीं कारणवश या हमारे ईगो या एटीट्यूड की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी उस यार्ड में जो जो यार्ड है, गॉड के द्वारा जो मेड यार्ड है, जो धरती है, उस पे जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं बिना रुके बिना थके। द नेक्स्ट स्टेंजा। Those who from golden goblet drink red wine may dismiss us in contempt and extreme scorn, for we are made for the poor simple folk. We are cheap and may easily break. True, yet we are good enough to store the blessed gift of earth, water clear and pure, within our hold unpolluted. The earthen pot says that those who from golden goblet drink red wine may dismiss us in contempt and extreme scorn. Here the poet says that those people who are rich and who drink water and red wine in golden glasses may dismiss us in contempt, may throw us, and they do not want us. But क्यों? Because we are made for simple folks, because we are made for poor people. We are easy and may easily break. The poet said that we are made of mud and we can easily break. That's why rich people contempt us, scorn us. They do not want us, because we are made for poor people, the folk, the countryside people, and they use us. जो पोट हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हम जो हैं उन्हें रिच लोग या जो बड़े लोग हैं वो पसंद नहीं करते, बिकॉज वो अमीर होने के साथ साथ अपनी जो शौक और सुविधाएं हैं वो भी अलग रखते हैं। वो बजाय कि हम अर्दन पॉट्स के जो गोल्डन गॉबलेट्स हैं उनमें ड्रिंक करना पसंद करते हैं। हम जो हैं बहुत ही पुअर और रिच गरीब लोगों के लिए, जो ग्रामीण फोक्स होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनके लिए बने हुए हैं। और जो गांव के लोग होते हैं गरीब होने के लिए या पुअर होने के कारण वो इजीली हमें अफोर्ड कर सकते हैं
पर हमारी एक कमी ये है कि हम बहुत आसानी से टूट जाते हैं, बहुत आसानी से बिखर जाते हैं। Yet we are good enough to store the blessed gift of earth, water clear and pure, within our hold, unpolluted though we are mere earthen pots. लेकिन फिर भी हमारी जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि हम सबसे अच्छे हैं। क्यों? बिकॉज द ब्लेस्ड गिफ्ट ऑफ अर्थ, जो सबसे सुंदर प्रकृति का उपहार है, जो पानी है, हम उसे अपने अंदर सहज के रखते हैं, बिल्कुल शुद्ध और प्योर, विद इन आवर होल्ड अनपॉल्यूटेड। उन्हें, पानी को बिल्कुल भी हम गंदा नहीं होने देते। इनफैक्ट जो अनपॉल्यूटेड वाटर होता है वो भी हमारे अंदर आके एकदम प्योर और क्लियर हो जाता है। दो वी आर मियर अर्दन पोर्ट्स, तो क्या हुआ अगर यदि हम मियर अर्दन पोर्ट्स से हैं, सिर्फ मिट्टी के बने हुए घड़े हैं, तो भी हम इतने बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि हम हैं जो प्रकृति का सबसे महंगा और सबसे अद्भुत उपहार है पानी, उसको बहुत ही स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। Though we are mere earthen pots, even our makers do not know where tomorrow we shall be. Hundreds like us who are crowded here are waiting for some unknown buyer to lift us up and by one and hold us to the air and with a finger stroke quality test us by the sound. The one earthen pot says to the other that even our makers do not know, कि जो हमारे बनाने वाले मेकर हैं उन्हें भी ये पता नहीं है कि वेयर टुमारो वी सेल बी, कि कल हम कहाँ होंगे। हंड्रेड्स लाइक अस हु आर क्राउडेड हियर आर वेटिंग फॉर सम अननोन बायर्स। हमारे जैसे जो अनगिनत घड़े यहाँ पोर्टर यार्ड में जो रखे हुए हैं, जो कुम्हार के आंगन में रखे हुए हैं, वो बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और कि कोई अननोन बायर है जो आएगा और वो उन्हें वहाँ से उठा के ले जाएगा। जो मटके हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं कि कोई अननोन बायर है जो आके उन्हें ले जाएगा। जो उनका मेकर है, जो पॉटर है, उसे भी इनकी डेस्टिनी का, इनकी जो किस्मत है उसका अंदाज़ा नहीं है कि आज तो ये आंगन में रखे हुए हैं सहज की, लेकिन कल इनका कहाँ ठिकाना होगा किसी को मालूम नहीं है। To lift us up one by one and hold us to the ear and with a finger stroke quality test us by the sound. If satisfied, he buys one and walks away. To lift us up, वो जो बायर्स हैं, जो अननोन बायर्स हैं, जो पॉटर्स के यार्ड में उन्हें परचेज़ करने के लिए आते हैं, उन्हें उठाएंगे और विद द फिंगर स्ट्रोक, जो अपनी उंगली है उससे उस घड़े को बजा के चेक करेंगे कि ये घड़ा सही है या नहीं है, और उन्हें चेक करके अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो उन्हें अपने साथ वो ले जाएंगे। फॉलोड बाय आवर साइज दैट बाइंड अस इन वन थॉट ऑफ वो, और उसके बाद एक ऐसी सैडनेस या साइनेस निकलती है जो हमें हमेशा के लिए शोरों में, डिस्ट्रेस में छोड़ देती है, दुख में छोड़ देती है। यहाँ अगेन जो पोइट हैं वो मेटाफोर का, घड़े का एक मेटाफोर के रूप में यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे घड़े को एक पॉटर बनाता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर कहाँ होगा, उसकी डेस्टिनी उसे कहाँ लेके जाएगी, उसी प्रकार इस पृथ्वी पे जो मनुष्य जन्म लेता है, उसको बनाने वाले ईश्वर तक को ये मालूम नहीं है कि आज वो पृथ्वी पे कहाँ है और कल वो कहाँ होगा। उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत बिल्कुल अननोन है। जिस तरह से एक मटके को एक बायर उठा के ले जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसे भी मृत्यु है जो इस दुनिया से छीन के ले जाती है। और जो उसके पीछे जो रहने वाले उसके परिचित हैं, उसके जो घर वाले हैं, वो हमेशा एक दुख में और डिस्ट्रेस में रह जाते हैं। सिवाय शोक मनाने की वो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि ये घड़े हैं, जो एक घड़ा अगर कोई बायर उनसे परचेज़ करके ले जाता है तो वो शौक मनाते हुए रह जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। An intense sense of loss of one who was one among us and one of us takes hold of us. When our turn comes to depart, and when it comes, who would be the first to leave?
द इंटेंस सेंस ऑफ लॉस। जब कोई घड़ा वहाँ से कोई वायर परचेज करके लेके जाता है तो जो बाकी बचे हुए घड़े हैं पोटर्स के यार्ड में, उनमें एक बहुत ही गहरा दुख या संवेदना की भावना रह जाती है। कब? जब उनमें से कोई एक परचेज करके ले जाया जाता है। व्हेन आवर टर्न कम टू डिपार्ट, और जब हमारी बारी आएगी यहाँ से जाने की। एंड व्हेन इट कम, और जब ये आती है। हु वुड बी द फर्स्ट टू लीव, हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में हमेशा एक ही विचार चलता रहता है कि अब किसकी बारी आने वाली है। यहाँ मेटाफोर के रूप में घड़े का यूज़ करते हुए पोएट कहना चाहता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उस समय उसके जो परिचित होते हैं वो शोक मनाते हुए ये भी सोचते हैं कि हाँ, आज हमारा जो परिचित है इस दुनिया से अलविदा कह चुका है, अब पता नहीं ना जाने किसकी बारी आएगी। और इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा परिचित हमें छोड़ के गया है, हम भी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह के चले जाएंगे। जिस प्रकार से जो घड़े हैं शोक मनाते हुए रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी तरह से डीप लॉस और सेंस की भावना, डीप लॉस दुख की और डिस्ट्रेस की भावना हमेशा के लिए विचलित करते हुए मनुष्य को छोड़ जाती है। एक ऐसी भावना जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो बहुत ही अंदर से व्यक्ति को झकझोर के रख देती है। एक ऐसी अननोन डेस्टिनी जिसके बारे में व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका जो मेकर है, जिस प्रकार घड़ी का मेकर है पोटर, वो खुद नहीं बता सकता कि उसे कौन सा वायर परचेज करके लेके जाएगा। उसी प्रकार जो ये दुनिया है जिसमें मनुष्य रहते हैं, यहाँ से पता नहीं मृत्यु कब कौन से व्यक्ति को किस समय छीन के ले जाए। और जो भी उसके परिचित हैं, जो भी उसके परिवारजन हैं, उनमें एक डीप सेंस ऑफ लॉस रह जाता है। दिस इज़ द पार्ट 1 of Earthen Pot. We will see the next part, Earthen Pots 2, in which we will discuss the question answer and the theme of the poem. Thank you.